Hence, I need to only mention that it was only yesterday night that we were made aware of the order of the Election Commission that had debarred the senior minister representing BJP in Assam from campaigning on account of his statements against Mr. Hagrama Mohilari, threatening him with detention under the NIA. Within less than 24 hours, the Election Commission, without notice to or seeking the comments of the complainant, the INC and the Bodoland People's Front, have reversed its own decision of barring Mr. Sarma for 48 hours and have reduced the period to 24 hours. Now, this is unheard of in the annals of parliamentary history, that the chief election watchdog reverses its own decision made upon a complaint by a complainant without the courtesy of even a notice to that complainant. We are raising a much larger issue of principle here. The issue is about the sanctity, about the functioning, about the working of the chief election watchdog, whose constitutional mandate is to preserve the purity of the electoral process. The wide constitutional powers vested under Article 324 upon the Election Commission is intended to subserve a primary objective of the nation, namely to strengthen and preserve and hold in trust parliamentary democracy in this country. The Election Commission has singularly failed to discharge its obligations as far as this case is concerned, because we do not know under what circumstances the Commission was persuaded by a mere letter from Mr. Sarma. In fact, in his letter seeking reduction of the banning period, he has expressed regrets and said that he is himself a candidate, therefore his period should be reduced. Now, all these facts were known even earlier when this order was passed. There is nothing new that has been brought to the notice of the Election Commission, except for the fact that in the earlier complaint he denied the allegations. In the latest application he expressed regret. So even after he has admitted to wrongdoing, his punishment period has been reduced. This is unheard of in any judicial or quasi-judicial proceeding without notice to the complainant. So we would like to tell the nation that all is not right with the way the elections in Assam are being conducted. The manner in which the chief protector of the voters' rights has acted raises several doubts. I would like to mention just two very pertinent facts. Tomorrow, in the constituency of Mr. Hemendra Biswa Sarma, he is supposed to be holding a public meeting with the Home Minister of the country. The question that many people are asking, and we also raise from this podium, is that the reason why his barring period has been reduced? This is a very pertinent question, and I think the people of India who are wise, who are sagacious, will understand what the real reasons could have been. Again, today we have seen the Twitter invitation by Mr. Hemendra Biswa Sarma asking people to join him in a road show in favor of an AGP candidate. The invitation is at 4:12 p.m. Now, all these road shows we know are planned well in advance in elections. So did he know already that he was going to get a reprieve or going to get some kind of concession? These are very, very pertinent questions, and therefore these need to be raised. मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सैटरडे शाम को यहाँ तशरीफ़ लाए हैं।
एक बुनियादी बात आपसे करनी है और आपके माध्यम से देश की जनता तक पहुंचानी है। कल इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में जो फैसला इंडियन नेशनल कांग्रेस और बॉर्डरलैंड पीपल्स फ्रंट की कंप्लेंट पर लिया गया था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाया था कि क्योंकि जो कंप्लेंट हेमेंद्र बिस्वा शर्मा के खिलाफ की गई थी आईएनसी ने और बॉर्डरलैंड पीपल्स फ्रंट ने, उसमें तथ्य पाया गया, उसमें सब्सटेंस पाया गया, इसलिए वो मंत्री के खिलाफ 48 घंटे का बैन लगाते हैं इलेक्शनरिंग पर। आज यकायक हमको ये मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने स्वयं से बिना कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस को नोटिस दिए बगैर अपना फैसला बदल के जो 48 घंटे का बैन था मंत्री जी पर, उसको 24 घंटे पे तब्दील कर दिया। क्या इसलिए तब्दीली हुई क्योंकि कल होम मिनिस्टर साहब के साथ हेमेंद्र बिस्वा शर्मा की पब्लिक रैली है, या फिर हेमेंद्र बिस्वा शर्मा को पहले ही पता लग गया था कि ये बैन का पीरियड कम हो जाएगा, इसीलिए आज ट्विटर पर उन्होंने रोड शो का इनविटेशन दिया है कि जिस रोड शो में वो खुद शामिल होंगे। कहने का मतलब ये है कि देश की जनता आज ये जानना चाहती है कि जिस देश की मूल कदर प्रजातंत्र और लोकतंत्र के साथ जुड़ी है, उस प्रजातंत्र और लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी जिस इलेक्शन कमीशन पर है, क्या ये संवैधानिक संस्था अपना रोल पूरी तरह से अदा कर रही है कि नहीं? आज सवाल बुनियादी है। ये केवल एक मंत्री या एक इलेक्शन रैली या एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल नहीं है, सवाल सिद्धांतिक है। क्या ये सिद्धांत को हम मान के चल रहे हैं कि प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस हमारे लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य कंडीशन है? और अगर ये बात सही है तो क्या इलेक्शन कमीशन का ये जो ऑर्डर है जिसका मैंने जिक्र किया, वो इलेक्शन कमीशन की मर्यादा को कायम रखता है या नहीं? और अगर इलेक्शन कमीशन चूक कर रही है तो क्यों चूक कर रही है? क्या सरकार के दबाव के तहत चूक कर रही है? क्या कारण है? देश की जनता को यह बात जानने का अधिकार है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसने सदा देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए काम किया है, आज आपके माध्यम से ये सवाल इलेक्शन कमीशन से कर रही है। इसका जवाब उनको देना होगा, नहीं तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो पीढ़ियां हैं, कहीं उनका लोकतंत्र से और लोकतंत्र की व्यवस्था से कहीं विश्वास ना उठ जाए। ये बड़ी चुनौती है। तो आज मुख्य तौर पर हमने ये बात आपसे करनी है और बराए मेहरबानी हमारी ये अपील है कि इस सिद्धांतिक बात को एक सिद्धांतिक मुद्दे के तौर पर देश के सामने हम रखना चाहते हैं, और इसी रूप में ये सामने आए तो मैं समझता हूँ कि देश में लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो बुनियाद है वो मजबूत होगी। और आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले पंजाब में श्री राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन में बीजेपी को हरा सकते हैं, पर जब मीडिया और संस्थाएं अपना काम पूरी तरह से ना कर रही हों तो हम अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं? तो आज जो बातें उन्होंने उस वक्त कही थी, और मैं भी ये मानता हूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि असली बात आज देश में लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ द पीपल, फ्रीडम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये एक हकीकत है कि नहीं? अगर हमारी, जिसे कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, अगर वो खोखली हो गई तो फिर हम इस देश में लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे। ये बुनियादी बात आज आपके सामने हम रखना चाहते हैं। कोई सवाल हो तो आप पूछिए। पहले सुओ मोटो से ले लेंगे, उसके बाद सर, आप लोगों की बात लगती है इलेक्शन कमीशन में आप सवाल उठा रहे हैं, क्या बीजेपी ने भी जब इलेक्शन कमीशन में फैसला सुनाया तो बीजेपी के नाम से कहा कोर्ट जाएंगे, क्या आप लोग भी इस फैसले को लेकर आगे जो रास्ते आप सामने विकल्प हैं उनका इस्तेमाल करेंगे?
सॉरी आप इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है, आप सवाल सिर्फ उसकी मोरालिटी पे ही उठा रहे हैं, लेकिन क्या इसकी कोई, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, कोई लीगैलिटी भी इसकी बनती है क्या? और अगर उसको आप एक्सरसाइज करना चाहें तो कांग्रेस पार्टी। देखिए, लीगैलिटी तो हर चीज की बनती है, हर चीज को हम कानूनी ढंग से चुनौती दे सकते हैं, मगर सियासत को हम हर वक्त लीगल तरीके से ही उसको नहीं लड़ाई की जा सकती। ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है, अब देखिए 2 दिन के बाद वहां चुनाव है, इसमें हम 2 दिन के अंदर क्या लीगल चुनौती दें और क्या बात करें। सवाल तो था इलेक्टोरल प्रोसेस की प्योरिटी रखने के लिए जिस आदमी पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने की थी, क्या कोई ऐसी बात सामने आई है जिससे केवल 48 घंटे का बैन को फिर कम कर दिया जाए। इनफैक्ट हमने 5 प्रार्थनाएं की थी इलेक्शन कमीशन। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, एक तो आप FIR दर्ज करिए कि जो जैसी स्टेटमेंट दी गई है। एक हमने कहा था कि आप बीजेपी पर सेक्शन 16A के तहत एक्शन लीजिए डिबारिंग का। एक हमने कहा था कि इनके चुनाव को कैंसिल करिए।